नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jamil Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 77 to 78 of Suratul Hajj of the 17th chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses attentively, lovingly, as well as silently, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to listen to me carefully as well as repeat with me. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا
ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dear viewers, now we are going to the third and final segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as romanized on your television screen. For those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets, this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. In Roman, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. In Urdu, ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने परवरदिगार की, और हमेशा मुफीद काम किया करो ताकि तुम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाओ. In English, O believers, bow and prostrate and worship your Lord and do good deeds. Haply you may be relieved.
वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह। In Roman, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. In Urdu, और सर तोड़ कोशिश करो अल्लाह ताला की राह में जिस तरह कोशिश करने का हक है. In English, and strive in the path of Allah as is due for striving. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. In Roman, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. In Urdu, उसने चुन लिया है तुम्हें हक की पासबानी और इशाअत के लिए और नहीं रवा रखी उसने तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी. In English, He has chosen you and has not laid upon you any narrowness in religion. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. In Roman, ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. In Urdu, पैरवी करो अपने बाप इब्राहिम के दीन की, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम यानी सरे इताअत खम करने वाला रखा है. In English, the faith of your father Ibrahim. Allah has named you Muslim. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. In Roman, من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. In Urdu, इससे पहले और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है ताकि हो जाए रसूल करीम गवाह तुम पर और तुम गवाह हो जाओ लोगों पर. In earlier books and in this book too, so that the messenger may be your custodian and witness, and that you may be witness against mankind. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. In Roman, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. In Urdu, पस ए दीन हक के अलम बरदारो सही सही अदा किया करो नमाज और दिया करो ज़कात और मजबूत पकड़ लो अल्लाह ताला के दामन रहमत को. In English, so establish prayer and pay the poor due zakat and hold fast the rope of Allah. هو مولاكم
निअमल मौला व निअमन नसीर। In Roman, huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir। In Urdu, वही तुम्हारा कारसाज है, पस वो बेहतरीन कारसाज है और बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। In English, he is your protector and what an excellent helper. नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कुरानिक प्रोग्राम इक़रा, जिसमें हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही प्रोनाउंस करके उसकी सही तिलावत करना सिखाया करते हैं और इसके साथ साथ समराइज़ करके जितनी भी आयात हम तिलावत करते हैं उनको आपकी खिदमत में डिफ़ाइन किया करते हैं। चुनांचे आज का सबक और इसका इख्तिताम और इसकी तफसीर, इसकी तशरीह, इसकी तोज़ीह कुछ यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए ईमान वालो, रुकू करो, सुजूद करो और उसकी इबादत किया करो और उसकी राहों में वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, उसकी राहों में सर तोड़ कोशिश किया करो। यानी जहाँ पर भी इशाअत दीन का मरहला आए, जहाँ पर भी तबलीग दीन का मरहला आए, जहाँ भी हसनात और बरक़ात की बात आए, जहाँ भी अच्छाई की बात किया करो तो आगे बढ़कर उसमें सर तोड़ कोशिश किया करो कि यही इस्लाम है। इसलिए कि दीन इस्लाम हमें अच्छाई की तरफ बुलाता है, हसनात की तरफ बुलाता है, शैतान और शैतानी राहों से दूरी इख्तियार करने की तालीम और हुक्म दिया करता है और फ़कत एक वाहिद क़हार, जब्बार और कुद्दूस गब्बे ज़ुल जलाल की इबादत करने की तालीम देता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, कि दीन इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। और मुस्लिम का माना है जो अपने आप को सरेंडर कर दे, जो अपने आप को किसी के हवाले कर दे। किसके हवाले? अपने रब्बे ज़ुल जलाल के हवाले। उसकी राहों में अपने आप को सजदे के लिए झुका दे, प्रोस्टेट करे, बाव करे, रुकू करे, सुजूद करे। इसलिए कि वही रब्बे ज़ुल जलाल इसके लायक है कि हम अपने आप को उसके हवाले कर दें और उसी की राहों में इबादत किया करें। और ये नाम रब ने फरमाया कि फ़कत कुरान में मज़कूर नहीं बल्कि पिछली किताबों में भी हमने बता दिया था कि एक बेहतरीन उम्मत आएगी जिसको हम चुन लेंगे, मुंतखब कर लेंगे और जिसका नाम मुस्लिम होगा। और फरमाया कि फ़कत इस दुनिया में तुम्हें नहीं चुना बल्कि कल आखिरत में भी मीज़ान अदल पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलियकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि ए गुलामान मुस्तफ़ा, ए उम्मत मुस्लिमा, हम तुम्हें कल क़यामत में भी बतौर एविडेंट, बतौर गवाह पेश करेंगे। तमाम अंबिया किराम हाजिर होंगे। हदीस मुबारक में आता है वो कहेंगे रब्बे ज़ुल जलाल, हमने तेरी तबलीग का सही सही फरीज़ा अंजाम दिया है लेकिन ये लोग तुझ पर ईमान लाने के लिए तैयार ना हुए। वो पिछली साबिक़ा उम्मतें कहेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल, ये अंबिया किराम ने हमें सही तालीम नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम को कहेगा कि अपने लिए कोई गवाह लाते हो? तो तमाम अंबिया इकराम कहेंगे रब्बे ज़ुल जलाल, हाँ, हम आखिरी उम्मत को गुलामान मुस्तफ़ा को बतौर गवाह पेश करते हैं। और पिछली उम्मतें एतराज़ करेंगी कि ये लोग तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, सबसे आखिर में आने वाले हैं, इनकी गवाही किस तरह मोतबर होगी? तो वो सारे के सारे गुलामान मुस्तफ़ा कहेंगे रब्बे ज़ुल जलाल, हम इसलिए इनकी गवाही दे रहे हैं कि हमें अपने प्यारे नबी, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि पिछले अंबिया सादिक हैं, अमीन हैं और उन्होंने तेरी तबलीग की थी। अल्लाह तबारक व तआला फिर आखिर में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाह लाएगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और फिर आप जब गवाही देंगे आपकी वो फाइनल एविडेंस होगी, हातमी गवाही होगी और अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया इकराम को सुरखरू फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि ये बेहतरीन उम्मत है, ये बेहतरीन मुंतखब शुदा लोग हैं और ये इस दुनिया में भी अल्लाह ने मुंतखब फरमाया है और कल क़यामत में भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बतौर गवाह मुंतखब फरमाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अज़ीम शान आज़मतों की वजह से अपने रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर आजिज़ो इनकिसारी के साथ रुकू व सुजूद और उसकी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।